अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आप कैसे हो सर? बेटा जैसे आपको पता है हम अभी एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम के अंदर हमने पोराफेरा खत्म किया है, नाइजेरिया खत्म किया है, टेनोफोरा खत्म किया है और बेटा आज जो हम नेक्स्ट सब ग्रुप एनिमल किंगडम का पढ़ने वाले हैं उस सब ग्रुप का बेटा नाम है एस्कलमिंथीज। मैं और एक बार पढ़ता हूं बेटा, एस्कलमिंथीज ये एक सब ग्रुप है बेटा एनिमल किंगडम का। और अबाउट द एस्कलमिंथी मेरे बेटे, द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव रिटन हियर इज दैट दे आर आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। सो मेरा बेटा जो एस्कलमिंथी है इसका दूसरा नाम है राउंड वर्म्स। द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट एस्कलमिंथी बेटे इज दैट it is free living or it can be parasitic। बेटा जैसे आपको पता है पैरासाइट एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। सो बेटा जो एस्कलमिंथी है या तो ये पैरासाइट हो सकता है यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, और अगर ये पैरासाइट नहीं है उस चीज को बेटा हम कहते हैं फ्री लिविंग। सो योर एस्कलमिंथी there are some एस्कलमिंथी which live as parasite, live on other organism, and some एस्कलमिंथी मेरा बेटे they don't live on other organism, they live separately। that separate living is known as मेरा बेटा free living। so that's the point number 2 about the एस्कलमिंथी, that is they can be free living or they can be parasitic। The point number 3 about एस्कलमिंथी बेटे is that it show organ system level of organization। I have written here bro, organ system level of organization। this LOO mean level of organization। Here my bete I want to recapitulate you the thing that we discussed earlier in earlier classes where I told you there is a cellular level of organization। जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें सेल था। If this is a cell, this is a cell, but these two cells were not interacting with each other। ये आपस में इंटरैक्ट करते नहीं थे। उसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां मैंने आपको कहा बेटा अगर ये सेल है ये और एक सेल है, here in tissue level of organization the cells do interact with each other। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते थे। एंड देन मेरे बेटे वाज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां मैंने आपको कहा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिश्यूज आपस में इंटरैक्ट करता है। सो इन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द टिश्यूज इंटरैक्ट, व्हाइल एज इन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द सेल्स इंटरैक्ट। देन मेरे बेटे इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन it is the organs which are now interacting with each other। if in any organism the organs are interacting with each other, for example we humans, our heart is an organ, it is interacting with the brain। our heart is an organ, it is interacting with the kidney। सो ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जब ऑर्गन्स आपस में हाई हेलो करे, जब ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेट करे मेरे बेटे, ऐसी बॉडी प्लान को और ऐसे सिस्टम को बेटा हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस कैप्चुलेट द होल थिंग। यू हैव द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, you got the tissue level of organization, you got the organ level of organization, and you got the organ system level of organization। in cellular level of organization cells do not interact, in tissue level of organization cells do interact, while as in organ level of organization tissues interact। in organ system level of organization the organs interact। that is the difference between different level of organization। so mere bete here in the एस्कलमिंथी it show the organ system level of organization। hope you understand this। mere bete the point of 4 about the एस्कलमिंथी is that it shows bilateral symmetry, and we have discussed it already while I told you bilateral symmetry एक ऐसी symmetry है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा बट बाय ओनली वन प्लेन। सो बेटे
in the Askelmenthy, yes, it is symmetrical. Yes, this body can be divided into two equal halves, but not by many planes, but only one plane. Such type of symmetry, where body can be divided by only one plane, is known as bilateral symmetry, as I had discussed it in more detail in the previous lecture. So for now, it is a bilateral symmetry in the Askelmenthy. Fine? Then the next point is very important and you have to understand this. That is that Askelmenthy is triploblast. We know what is a triploblast. Why I told you, जब zygote बनता है, zygote के बाद तीन layers बनती है. The cell layer, the cell layer, the cell layer. The ectoderm, the mesoderm, the endoderm. So मेरे बेटे, the Askelmenthy is a triploblast, and by saying triploblast, I mean this. यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर इनिशियली कोई ऑर्गन नहीं बनता. इनिशियली बॉडी के अंदर तीन लेयर्स बनता है. सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम मेरा बेटा एक्टोडर्म. उसके बाद जो लेयर है मेरा बेटे, उसका नाम मेसोडर्म. और उसके बाद जो लेयर है मेरा बेटा, उसका नाम एंडोडर्म. अगर आपको याद होगा मेरा बेटा, मैंने आपसे कहा हमारे पास दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है. एक होता है डिप्लोब्लास्ट और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्ट. डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट में ये डिफरेंस है बेटा, यहां पे भी तीन लेयर है, यहां पे भी तीन लेयर है. इस पे जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सेल है, यहां भी सेल है. यहां पे मिडिल लेयर प्रोटीन होती है, यहां पे मिडिल लेयर सेल होती है, और यहां पे लोअर लेयर सेल होती है, यहां पे लोअर लेयर सेल होती है. So exactly the difference between diploblast and triploblast lie in the middle layer. Here the middle layer is made of protein, and here the middle layer is made of cells, and I have discussed it in the previous lectures. You can see that and get to know. So मेरे बेटे अभी के लिए we have the Askelmenthy which is triploblast. मेरा बेटा having said that, आप यहां की ओर देखिए बेटा, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और एंडोडर्म है. यानी कि जो ये चीज सर ने यहां बनाया इट इज ट्रिप्लोब्लास्ट थिंग, क्योंकि ये सेल लेयर है, सेल लेयर है, सेल लेयर है. सो ट्रिप्लोब्लास्ट थिंग. मेरे बेटे, इस ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर इसके बाद फ्लूइड जमा होता है. इस ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर इन द मेसोडर्म ऑफ दिस ट्रिप्लोब्लास्ट फ्लूइड गेट्स एक्यूमुलेटेड. जो ये वाला मेसोडर्म है बेटे, इसके अंदर फ्लूइड जमा होता है. नाउ मेरे बेटे, जो ये फ्लूइड जमा होता है इन द मेसोडर्म ऑफ द ट्रिप्लोब्लास्ट, इट कैन हैपन इन टू वेज. देखो पहला तरीका क्या, देखो बेटा, ये बनाया जायसन एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और एंडोडर्म. सो फ्लूइड कहां जमा होता है, मैंने अभी बोला बेटा, इन द मेसोडर्म. पहला क्या तरीका है, फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड जमा हो गया, दिस इज फ्लूइड, दिस इज फ्लूइड, दिस इज फ्लूइड, फॉर में फ्लूइड जमा हो गया. पहला तरीका ये है, मेसोडर्म के अंदर फ्लूइड जमा हो गया, लेकिन मेरे बेटे इस फ्लूइड के बाहर है एक्टोडर्म और इस फ्लूइड के अंदर है एंडोडर्म. मेरे बेटे, एक ऐसा ट्रिप्लोब्लास्ट जहां मेसोडर्म के अंदर फ्लूइड जमा होता है, लेकिन इस तरह जमा होता है फ्लूइड कि इस फ्लूइड के बाहर, साइड में नहीं बेटे, इसके बाहर एक्टोडर्म है और इस फ्लूइड के अंदर एंडोडर्म है. ऐसे ट्रिप्लोब्लास्ट को बेटा हम कहते हैं स्यूडोसीलम. ऐसे को हम कहते हैं स्यूडोसीलम. मैं स्पेलिंग बोलूंगा बेटे, PSEUDOCOELOM. सो मेरा बेटा, अगर आपको आज से कोई पूछेगा व्हाट इज स्यूडोसीलम, आप उनसे बोलिएगा कि स्यूडोसीलम एक ट्रिप्लोब्लास्ट है. उस ट्रिप्लोब्लास्ट के मेसोडर्म के अंदर फ्लूइड जमा होता है, लेकिन कैसे जमा होता है, इस तरह जमा होता है कि इस फ्लूइड के बाहर एक्टोडर्म है और इस फ्लूइड के अंदर एंडोडर्म है. दिस इज वन वे. मेरे बेटे, द सेकंड वे इन विच द फ्लूइड कैन गेट accumulated in this triploblast, in this mesoderm, is like this way. फ्लूइड जमा हो गया मेसोडर्म के अंदर, और देखो बेटा, यह है एक्टोडर्म, यह है मेसोडर्म और यह है एंडोडर्म. मेसोडर्म के अंदर और फ्लूइड जमा होता है, मेसोडर्म के अंदर ही,
लेकिन मेरे बेटे जो ये फ्लूइड जमा हो गया, अगर आप फोकस करोगे मेरे बेटे, इस फ्लूइड के बाहर मेसोडर्म है, इस फ्लूइड के अंदर साइड से भी मेसोडर्म है, ये है ना। हाँ, मेसोडर्म जब डेवलप हुआ, लेकिन इसके बाहर भी मेसोडर्म है, इसके अंदर भी मेसोडर्म है। इन कंपैरिजन टू दिस, ये भी मेसोडर्म में डेवलप हुआ, लेकिन इसके बाहर अगर आप देखोगे वो एक्टोडर्म है, इसके अंदर आप देखोगे बेटा वो एंडोडर्म है। सो मेरे बेटे, दिस टाइप ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट वेयर द फ्लूइड एक्यूमुलेट्स, यस, इन द मेसोडर्म, लेकिन इस मेसोडर्म के इस कैविटी के बाहर, इस फ्लूइड कैविटी के बाहर भी मेसोडर्म, अंदर भी मेसोडर्म। मेरे बेटे, ऐसे ट्रिप्लोब्लास्ट को हम कहते हैं ट्रू सीलम, TRUE, ट्रू, COELOM। सो मेरे बेटे, हमारे पास दो टाइप ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट, एक सीडोसीलम, दूसरा ट्रू सीलम। बेटा यहां पे भी 3 लेयर, यहां पे भी 3 लेयर, यहां एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यहां भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यहां पे भी फ्लूइड मेसोडर्म के अंदर जमा होता, यहां पे भी फ्लूइड मेसोडर्म के अंदर ही जमा होता, लेकिन यहां पे जो जमा होता है वो इस तरह जमा होता है कि इस फ्लूइड के बाहर एक्टोडर्म है और इस फ्लूइड के अंदर एंडोडर्म है। और जो यहां पे फ्लूइड जमा होता है, इस फ्लूइड के बाहर बेटा मेसोडर्म ही है, इसके अंदर साइड से भी मेसोडर्म ही है। सो मेरे बेटे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द pseudocoelom and true coelom. So मेरे बेटे, I'm telling you right now that our Askelminthi is yes a triploblast, but it is pseudocoelom. Can you now tell me what is the pseudocoelom? What do I mean by saying Askelminthi is pseudocoelom? So it means that yes is a triploblast. Yes, in the mesoderm there accumulates the fluid, but outside the fluid there is ectoderm, and inside the fluid there is the endoderm. Now the next point about Askelminthi मेरे बेटे is that it has muscular pharynx. बेटा जो ये वाला चीज है हमारे अंदर, ये बेटा इसको हम pharynx कहते हैं। माउथ के बाद pharynx आ जाता है पीछे, so माउथ अंदर pharynx। So पहली बार अगर pharynx किसी एनिमल के अंदर आया मेरे बेटे, वो pharynx पहली बार बेटा Askelminthi के अंदर डेवलप हुआ। So मेरे बेटे, the Askelminthi has the muscular pharynx. The now next point beta about the Askelminthi is that Askelminthi has some important cells, have some specialized cells known as H cells or Cobb glands. So मेरे बेटे, the H cell, the Cobb gland, the function of this H cell, the function of this Cobb gland is that it helps us in the excretion. Fine? So let's move to next point. The next point about Askelminthi is that it is dioecious, and then we know what's dioecious. But I have already told you that the sperm is produced by one organism and ova is produced by another organism. It's not like this कि a same organism produces both sperm and ova. नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, sperm अलग बनाता है, ova अलग एक organism बनाता है। So मेरे बच्चे, our Askelminthi is dioecious, मतलब ये कि the sperm and ova is produced not by the same organism but by different individuals. Fine? And then मेरे बेटे, it shows internal fertilization, that you know that the fertilization, the sperm and the ova fuse within the body. That is the internal fertilization. If they fuse outside the body, that is known as external fertilization, as we have discussed with that. And then मेरे बेटे, the life cycle is direct. I have discussed this in previous lectures. While I told you direct life cycle एक ऐसा life cycle है जहां zygote से सीधे बच्चा बनता है, zygote से पहले लार्वा बनता, अगर बेटा लार्वा बन गया बीच में पहले, उसके बाद बच्चा बन जाएगा, उसको हम कहते हैं indirect life cycle. So मेरे बेटे, the Askelminthi has the direct life cycle. Fine. The next important point beta about the Askelminthi is that it shows sexual dimorphism. क्या होता है sexual dimorphism? चलो मैं आपको समझाता हूं बेटा। बेटे,
अगर आप एस्कलमेंथी का मेल देखोगे बेटा, इसका जो मेल होता है वो छोटा होता है, यानी उसका साइज वो छोटा होता है, एंड वो थिक होता है, यानी मोटा होता है। एक तो छोटा होता है बेटे साइज में और मोटा होता है। वाइल एज जो इसकी फीमेल है मेरे बेटे, वो लॉन्ग होती है और मेरे बेटे पतली होती है, यानी थिन होती है। सो मेरे बेटे एस्कलमेंथी मेल, अगर आपको कोई एस्कलमेंथी मेल दे और कहे कि क्या ये एस्कलमेंथी मेल है कि नहीं है, सो बेटा आपको सिर्फ एक चीज से पता चलेगा, अगर वो शॉर्ट है और थिक है भैया जी वो मेल है। अगर एस्कलमेंथी जो आपको दिया गया वो लॉन्ग है और थिन है, आप कहिएगा वो फीमेल है। मेरे बेटे ऐसी प्रॉपर्टी को जहां आप बाहर से ही, दूर से देख के ही बोल पाते हो क्या ये मेल है कि फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल आपने दूर से देखा एक एस्कलमेंथी छोटा है और मोटा है, आपने कहा मेल है, या एक लंबा है और पतला है ये फीमेल है। मेरे बेटे ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। So sexual dimorphism is that property where we can differentiate the gender, the sex of organism by external appearance only. बेटा जो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ये हम इंसान भी दिखाते हैं, ये प्रॉपर्टी हम इंसान भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल वहां से आ रही है, ऑब्वियस सी बात है आप उसको कहोगे फीमेल है। एक मेल आ रहा है, आप ऑब्वियसली है आप उसको कहोगे मेल है। क्यों? बिकॉज बाय एक्सटर्नल अपीयरेंस ओनली you can differentiate whether it is male or whether it is female from external appearance only. So मेरे बेटे same property is shown by the Escalmenthi that by external appearance only you can say it's a male or female. You can differentiate the gender. Here the male is short and thick and the female मेरे बेटे is long and thin. Fine. And then मेरा बेटा अब कौन कौन ऑर्गेनिज्म एस्कलमेंथी है, यहां पे कुछ एग्जांपल है। सबसे पहली एग्जांपल मेरे बेटे है एस्कैरिस। एस्कैरिस। नंबर 2 एग्जांपल इज वुकरेरिया। बेटा आप मेरे साथ पढ़ेंगे वुकरेरिया। द नंबर 3 एग्जांपल इज एनसिलोस्टोमा। सो बेटे 3 एग्जांपल है, मैं और एक बार पढ़ता हूं क्योंकि आप उसको अजीब तरीके से बाद में पढ़ते हो। पहली एग्जांपल है बेटा एस्कैरिस, मेरे साथ बैठो एस्कैरिस। Next example is Wuchereria. Wuchereria नहीं है, Wuchereria. Number 3 मेरे बेटे is Ancylostoma. So मेरे बेटे that is all about the Esculmenthes.